أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين بزرگوں اور بھائیوں، اردو کی ایک مثل ہے، کہاں سے بنی ہے، کس طرح بنی ہے میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مثل یہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ پتہ نہیں یہ مثل کہاں سے بنی ہے اور کس طرح سے بنی ہے، لیکن مطلب واضح ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ یعنی کھیت میں خربوزے کی بیل ہے، بہت ساری بیلیں ہیں، تو اس بیل پر ایک خربوزہ لگا، اس بیل پر دوسرا خربوزہ لگا، ایک نے دوسرے کو دیکھا اور دیکھ کر کے رنگ پکڑا۔ ایسا تو نہیں ہوتا، مگر مسئلہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، لیکن بات صحیح ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ صحبت صالح تورا صالح کند و صحبت طالح تورا طالح کند۔ نیک کی صحبت میں بیٹھو گے نیک بنو گے، برے کی صحبت میں بیٹھو گے برے بنو گے۔ یہ تو واقعہ ہے، صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں آج ایک آیت پڑھی گئی ہے، قیامت کا منظر ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں مگر اللہ جیسا ہے ویسا نہیں مانتے، اپنے من میں جیسا چاہتے ہیں ایسا مانتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا ہے۔ کمیونسٹ ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور کوئی 2 خدا مانتا ہے، 3 خدا مانتا ہے، 100 خدا مانتا ہے، تو نہ ماننا ہے۔ اللہ کو مانو جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہے، تو وہی ماننا ہے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو کما حق ہو نہیں مانتے ہیں، وہ قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ ہمیں وہ 2 بندے دکھلائیے، جنات میں سے اور انسان میں سے، جن دونوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ آج ہم اپنے پیروں کے نیچے ان دونوں کو کچل دیں۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ آج دنیا میں جن انسانوں کے ساتھ دوستی تھی، جن جنات کے ساتھ دوستی تھی، اور ان جنات اور انسانوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں اللہ کے انکار تک پہنچا دیا، وہ ہمیں ذرا دکھائیے، ہمارے سامنے لائیے، آج ہم ان دونوں کو پیروں سے کچل دیں گے۔ اور دوسری آیت کل پڑھی جائے گی، الأخلاء بعضهم يومئذ الأخلاء بعضهم عدو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ پرہیزگار بندے الگ کر لو، باقی جتنی دنیا میں دوستیاں ہیں یہ قیامت کے دن دشمنیاں بن جائیں گی۔ سارے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ہاں،
जो नेक बंदे हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, ये यहाँ भी दोस्त हैं, वहां भी दोस्त होंगे। और जो नेक बंदे नहीं हैं, वो यहाँ तो दोस्त हैं, वहां जाकर दुश्मनियां बन जाएंगी। ये आगे आयत आ रही है सूरह ज़ुख़रुफ़ में, और ये आयत आज पढ़ी गई। इन दोनों आयतों का सबक क्या है? वो ये है कि अगर तुम अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हो या किसी को नेक बंदा बनाना चाहते हो, तो ईमान में और अमल में जो सच्चे हैं उनके साथी बनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, सच्चों के साथी बनो तो अच्छी सिफात पैदा होंगे, और अगर बुरों के साथी बनोगे तो सिफात पैदा नहीं होंगी। मेरे भाइयों, आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हो कि आज दुनिया का सारा माहौल खराब हो गया। स्ट्रीट का माहौल अच्छा नहीं है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, जॉब का माहौल अच्छा नहीं है, काम का माहौल अच्छा नहीं है। अब माहौल अच्छा कौन सा रह गया? मस्जिद का ही माहौल रह गया। मस्जिद का ही माहौल अच्छा है, उसके अलावा तो कोई माहौल अच्छा है ही नहीं। हमारे घरों का क्या माहौल है? वो हमारे घरों में जो सांपों की पिटारी आ गई, टीवी, ये सांपों की टोकरी है। ये जो टीवी है, ये सांपों की टोकरी है। जिस घर में ये टोकरी दाखिल हुई वो घर तबाह। तो कहीं अमान है नहीं। बस एक मस्जिद ही का माहौल अच्छा है, और मस्जिद के माहौल से हम दूर हो गए। इसीलिए मेरे भाइयों, हजरत मौलाना इलियास साहब कांधलवी क़ुद्दसा सिर्रुहू ने दिल्ली में रहते थे, और दिल्ली के भी सबब एरिया में रहते थे, मेन दिल्ली में नहीं रहते थे। दिल्ली का जो सबब एरिया था निजामुद्दीन, वहां रहते थे। एक टीन की मस्जिद थी, छप्पर मस्जिद क्या थी? छप्पर थी। उस मस्जिद में इमाम थे और वहां रहते थे। गोया गांव है एक, उस वहां से मुत्तसिल मेवात का इलाका था, और मेवात के लोग कारोबार करने के लिए, बेचने खरीदने के लिए कसरत से आते थे। तो इस मस्जिद में, बंगले वाली मस्जिद कहलाती थी वो, वहां आकर के जुमा पढ़ते थे। जुमा के दिन कारोबार करने आते थे और यहाँ आते जाते। उनका हाल देख देख करके हजरत मौलाना कोड़ने लगे, परेशान हुए कि इनको किस तरह से इनको इस्लाह की जाए और कैसे इनको समझाया जाए। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये जो तबलीगी जमात का जो निजाम है, ये निजाम डाला कि एक ही सूरत है। वो सूरत ये है कि इन जाहिलों को, देहात के लोगों को जो 24 घंटे काम में फंसे हुए हैं, इनको 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 40 दिन के लिए इनको घरों से निकालो और मस्जिद के माहौलों में ठहराओ। होटल में ठहराओगे ये दिन नहीं सीखेंगे, किसी के घर में ठहराओगे दिन नहीं सीखेंगे, मस्जिदों में ठहराओ तो मस्जिद का माहौल देखेंगे, और 40 दिन तक मुसलसल मस्जिद का माहौल देखेंगे। और उस माहौल में इनको दीन की बुनियादी बातें सिखलाओ, और जब वो बुनियादी बातें सीख जाएं तो आगे बढ़ाओ। इसे 6 नंबर तय किए। तो उस जमाने के उलमा ने ये बात कही कि हजरत आपने जो 6 नंबर किए हैं ये तो सारा दिन तो नहीं है। वो 6 नंबर क्या है? कलमा तय्यबा, नमाज, इल्म और जिक्र, इकराम मुस्लिम और इखलास। कोई एक आध और होगा, दावत इल्लाह कि दीन की तरफ आओ। ये 6 नंबर तय किए। तो उलमा ने कहा कि ये तो सारा दिन नहीं है। आपने नमाज तो सिखलाई, ज़कात तो नहीं सिखलाई, रोजा तो नहीं सिखलाया, हज तो नहीं सिखलाया, वगैरह वगैरह। तो हजरत ने फरमाया कि ये मेरे काम की बिस्मिल्लाह है। इसका मतलब ये था, एक आदमी बच्चे को लेकर आया कि हजरत इसको बिस्मिल्लाह करा दीजिए। तो हम कहते हैं अच्छा बैठ बैठ बेटे पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ बा ता सा, फिर के हलवाएंगे, अलिफ
با تا सा, फिर कहलवाएंगे अलिफ बा ता सा, ये बिस्मिल्लाह कहलवा। जा ऐसे याद करके ला, जब वो याद करके लाएगा तो आगे कहलवाएंगे जीम हा खा। तो हजरत मौलाना कुद्दसा सिर्रुहु ने फरमाया कि मेरे काम की बिस्मिल्लाह है। जब ये देहाती खेत में हल चलाने वाले जाहिल बेचारे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं जानते, ये इन 6 नंबर पर आएंगे तो फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। बाकी सिखलाना तो पूरा दिन इनको सिखलाना है। बात के जो आज के तबलीग वाले हैं उनको ये गलत फहमी हो गई कि ये दीन का सारा काम यही है, और वो 6 नंबर के अंदर ही फंस कर रह गए। आगे तबलीग वालों को कुछ पता नहीं, न मुआशरत रहन सहन का पता है, न कारोबार के मसाइल जानते हैं, न अखलाक का मसला है, कुछ पता नहीं। बस 6 ही नंबर से आगे मत निकलो। हजरत कुद्दसा सिर्रुहु ने ये 6 नंबर अपने काम की बिस्मिल्लाह फरमाई थी। तो बिस्मिल्लाह तो किसी न किसी दिन याद हो जाएगी, आगे बढ़ो, सारा दिन लो। अब उनके है ही नहीं। इसका नतीजा ये है कि किसी मस्जिद में तबलीग वालों की तालीम में कोई आम मुसलमान बैठते ही नहीं। क्यों नहीं बैठते भाई? दिन की बात हो रही है, क्यों नहीं बैठते? इसलिए नहीं बैठते को तो बिस्मिल्लाह ही में है, आगे बढ़ते ही नहीं। अब दिन की तो कोई बात करते ही नहीं। खैर छोड़ो इसे। मैं तो ये कह रहा था कि हमारे यहाँ ये यूरोप का माहौल, अब तो सारी दुनिया का माहौल खराब हो गया है। यूरोप का माहौल सबसे ज्यादा खराब है, और वो खराब किसने किया है? एक तो गैर मुस्लिमों के साथ हमारा मिलना जुलना रहता है, जॉब पर उनके साथ मिलना, स्कूलों के अंदर उनके साथ मिलना, सबके साथ उनके साथ मिलना है। मजलिस में एक आदमी ने बेहतरीन इत्र निकाला, थोड़ी देर में सारी महफिल जाफरान जार हो जाएगी। ओके, अरे बड़ा अच्छा इत्र है, किसने लगाया? और एक मजलिस हो रही थी, मस्जिद में नहीं, बाहर पैसेज में, और एक पादा। तो थोड़ी देर में सारा, अरे पता नहीं किसने कम वक्त ने, ये अच्छी सोहबत है, बुरी सोहबत की मिसाल है। अच्छी सोहबत में बैठोगे तो नेकी मिलेगी, बुरी सोहबत में बैठो तो बुराई मिलेगी। बस मेरे भाइयों, अपनी न्यू जेनरेशन उसके खराब होने के ज्यादा इम्कानात हैं, और न्यू जेनरेशन को तो छोड़ो, खुद हमारे भी खराब होने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। बस लिहाजा अगर आप अपनी नस्लों को और औलाद को दीन पर लाना चाहते हो तो जमात में निकालो, और वो 40 दिन तक या कमो बेश जितना उनके पास वक्त है, उन वक्तों के अंदर मस्जिदों के माहौल के अंदर वो ठहरेंगे और मस्जिदों का माहौल देखेंगे, और फिर उन मस्जिदों के माहौल में उनको दीन की बातें बताई जाएंगी। बस यही एक रास्ता है अब नई नस्ल को दीन पर लाने का। हमारे यहाँ इंडिया की बात कहता हूँ, हमारे इंडिया में मैं दारुल में पढ़ाता हूँ, तो जमातें जो भी आती हैं वो हमसे मिलने आती हैं। तो मैं सबको देखता हूँ, सबकी दाढ़ियां हैं, हाथ में तस्बीह है, चेहरे पर निशान है, 12 आदमी हैं, सब ऐसे हैं। तो मैं उनसे मुसाफा करके कहता हूँ कि तुम क्या करने निकले हो? पैसा बर्बाद करने? भाई तुम में दाढ़ी मुंडा तो कोई भी नहीं है, तुम में बेनमाजी मुझे कोई नहीं दिखता, तुम्हारे अंदर कपड़े का लिबास गलत है मुझे कोई नहीं दिखता, सब अल्लाह के नेक बंदे निकले हो, तो क्या करने निकले हो? अरे भाई तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव के अंदर जो मस्जिद से दूर है, उन्हें जहन बना बना करके जमातों में निकालो, तो कोई फायदा है जमात में निकलने का? उनका फायदा है। मेरा महल्ला है, मैं 45 साल से उस महल्ले में हूं। तो मैंने कई साल पहले मस्जिद के मुतवल्ली से, 3 मस्जिदें हैं हम मेरे महल्ले में, मैंने मुतवल्ली से कहा मैं 40 साल से इस महल्ले में हूं और हर महीने जमात जरूर आती है मस्जिद में, तो मुझे ये बताओ महल्ले में इस 40 साल में कोई बंदा जमात की वजह से नमाजी बना? तो उसने कहा कोई नहीं बना।
तो फिर जमातों का आने का फायदा क्या है? वो आते हैं, ईशा में घूमते हैं, नौजवानों को पकड़ के लाते हैं और ईशा के बाद में यही कहते हैं निकलो निकलो, उनको निकलना है नहीं, वो सुनकर चले जाते हैं। सुबह जमात भी चली गई और ये भी मस्जिद से चले गए। उनको न पाकी आती है, न नापाकी आती है, न उनको कोई मसला मालूम है, न उनके कपड़े सही हैं, न उनको तहियात आती है, न सना आती है, न नमाज की तरकीब आती है, कुछ भी नहीं आता। ये नहीं सिखाएंगे, ये कुछ नहीं सिखाएंगे, बस निकलो निकलो यही कहेंगे। इसलिए लोग बैठते भी नहीं। तो मुतवल्ली ने कहा कि 40 साल में एक बंदा भी जमात की मेहनत से नमाजी नहीं बना। तो ये तो मैं हिंदुस्तान की बात कह रहा हूं, वहां भी काम करने, ये कहते मकामी मेहनत। मकामी मेहनत क्या है? ये वो बंदे हैं जो रक्षा चलाते हैं, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, मस्जिद से बहुत दूर हैं, अलकलमा भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। इनके एक एक के पीछे लगो और लगा लगा कर इनको मस्जिदों में लाओ, जमातों में निकालो। तो 40 दिन में दीन की बुनियादी बातें सीख कर आएंगे, फिर आगे भी सीखेंगे। यूरोप में हमारे यहाँ का सूरत हाल तो दूसरे है। हमारे यहाँ तो इतनी करीब करीब मस्जिदें हैं और सेपरेशन है, मुसलमान अलग हैं, हिंदू अलग हैं, इसलिए हिंदुओं का मुसलमानों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। मगर यहाँ की सूरत हाल तो बहुत खराब है। बस मेरे भाइयों, अगर इस मुल्क में, और इस मुल्क से मुराद है सारा यूरोप और अमेरिका, इन मुल्कों के अंदर अगर आप अपने औलाद को दीन पर लाना चाहते हैं तो आज एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। वो ये है कि अपने बच्चों का जहन बनाकर 3 दिन के लिए निकालो, फिर वो चना चखेंगे और मजा आएगा तो फिर वो 10 दिन के लिए भी निकलेंगे, इसीलिए के लिए भी निकलेंगे। इस तरह से उनको निकालते रहोगे तो हमारी नस्ल हमारे काबू में रहेगी और दीन पर आएगी और ये दीन से दूर हो जाएगी। और इतनी दूर हो जाएगी कि उन्हें क़यामत के दिन काफिरों को तो कहना पड़ेगा कि जिन इंसानों ने हमें गुमराह किया और जिन जिन्नात ने हमें गुमराह किया, ये दोनों हमें दिखाई, ये हम पैरों से कुचल दें आज उन्हें। और दोस्तियां, इस दुनिया में जो दोस्तियां हैं वो अगली दुनिया में जाकर दुश्मनियां हो जाएंगे। लेकिन मुत्तकीन परहेजगार जो मस्जिदों में, जिनका ताल्लुक मस्जिदों से था, वो दुश्मनियां नहीं होंगे, वो दोस्तियां रहेंगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।